हम कर रहे हैं प्लांट एनाटॉमी, जैसे कि मुझे कहा गया था कमेंट्स में। सो थैंक यू वेरी मच वीरू मुझे सजेस्ट करने के लिए। सो वी आर डूइंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप साथ में क्लास 11th और क्लास 12 की और इंपॉर्टेंट डायग्राम की सीरीज देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथ में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का मैंने वीडियो बना लिया है, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। We have chapter 6 plant anatomy of flowering plant or plant anatomy. So first of all we have here the introduction of the chapter. इसको भी हम एक बार read कर लेते हैं. You can very easily see the structural similarity and variations in the external morphology of the larger living organisms, both plants and animals. Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. This chapter introduces you to internal structure and functional organizations of higher plants. Study of internal structure plant is called anatomy. This is a really important part. You can just underline it or remember it. अगर आपको पता ही होगा, anatomy is the study of the internal structure of plants. Plants have cells. Plants have cells as the basic unit. Cells are organized into tissue, and in turn the tissues are organized into organs. Different organs in the plant show difference in their internal structure. You will have to remember that all the organisms are constituted basically of the cells, और cells जो है वो मिलके टिश्यू बनाते हैं. टिश्यू makes organ and organ makes organ system. जो हमारी बॉडी या फिर ऑल ऑर्गेनिज्म जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में ऑर्गन सिस्टम्स, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम एक्सेट्रा. वो सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके फाइनली एक ऑर्गेनिजम्स को कंस्टिट्यूट करते हैं. विद इन एंजियोस्पर्म द मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स आर आल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट. इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शो अडेप्टेशंस टू डाइवर्स एनवायरनमेंट. ये भी हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनमें डिफरेंट एनवायरनमेंट को लेकर भी उनमें डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उन एडेप्टेशंस होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट को कोप कर सकें. द टिश्यू. A tissue is a group of cells having a common origin and usually performing a common function. A plant is made up of different kind of tissue. Tissues are classified into two main groups, namely meristematic and permanent. Tissue based on whether the cells being formed are capable of dividing or not. This is extremely important. टिश्यू जो all the type of tissue होते हैं plants में, they are in ये बात सिर्फ हम plant की कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे. जो plants होते हैं उनमें हम देखेंगे कि जो टिश्यू है उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है. आपको पता है कि plants ऑलवेज ग्रो, इसका मतलब है उनमें कुछ ऐसे सेल्स ज़रूर होते हैं जो कि हमेशा ग्रो करते रहते हैं. उन टाइप को के सेल्स को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एंड जो टिश्यू जो है, जो सेल्स डिवाइड करना बंद कर देते हैं, दे मैच्योर. जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक बार लीफ बड़ी हो गई तो दे डू नॉट जस्ट कीप ग्रोइंग, वो अपने फुल साइज में आ गई, दे जस्ट गो टू सेनेसेंस एंड डाई. अपना फंक्शन पूरा करने के बाद वो मर जाती हैं. सो वी नो कि कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो ग्रो नहीं करते हैं, दैट आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू. We have meristematic tissue right here. Growth in plants is largely restricted to specialized region of active cell division called meristems. Plants have different kinds of meristem. The meristems which occur at the tip of root and shoot produce primary tissue called apical meristem. Alright, here we have a diagram, but most of the students are not able to identify all the parts present in these diagrams and cannot understand what are given in this, and many of the time students जो हैं इस diagram को just skip कर देते हैं. They do not even care about this diagram, but I have included a much better and similar diagram जिसको देख के आपको पूरा का पूरा ही समझ में आने वाला है. Root apical meristem occupies the tip of a root, while the shoot apical meristem occupies the distant-most region of the stem axis. During the formation of leaves and elongation of stems, some cells left behind from the shoot apical meristem constitute the axillary bud. Let me make it clear to you all. आपको ये पता है कि जो रूट एंड शूट है वो तो हमारे रेडिकल एंड प्लूम्यूल से फॉर्म होते हैं, और जो रूट की टिप होती है उस पर होता है रूट एपिकल मेरिस्टम. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे लिखा है रूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाई द टिप ऑफ रूट. एंड जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो होता है शूट के टिप पे. बट जो स्टेम्स होती हैं वो कहाँ से अराइज
साइड्स होती हैं, तो जो लीव्स और जो स्टेम होती हैं जब वो एलोंगेट हो रही होती है, नई स्टेम्स बन रही होती है, तो कुछ सेल्स जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई भी फ्लावर या लीफ राइज हो रही होती है तो उसके साइड में छोटा सा एक पार्ट रह जाता है, उसको कहते हैं एक्सिलरी बड। इन सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ लीव्स एंड आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर। ये क्या होता है कि यही एक्सिलरी बर्ड्स जो है आगे चल के न्यू जो ब्रांचेस हैं एंड फ्लावर्स हैं वो फॉर्म करती हैं। The meristem which occur between mature tissue is known as intercalary meristem. Let me show you the diagram first. The diagram is so makes it so simple. आप इसको इस पैराग्राफ को तो पढ़ेंगे ही because this paragraph is extremely important, but I'll continue from right here. उससे पहले हम डायग्राम देख लें. Here do we have the diagram, and the most simple diagram we have right here. This is types of meristem we have. First of all, we can see here कि दिस इज एपिकल मेरिस्टम, यानी एपिकल मेरिस्टम कैन बी ऑफ एनी पार्ट। ये जो है शूट एपिकल मेरिस्टम भी हो सकता है एंड रूट एपिकल मेरिस्टम भी हो सकता है। इफ़ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एपिकल मेरिस्टम, ये टिप वाले जो हमारे सेल्स हैं उनकी बात हो रही है। इसको अगर हम कोई सा भी पार्ट मान के चले, स्टेम या रूट, सो वी हैव नेक्स्ट इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम क्या होती है? जब एक स्टेम ब्रांच निकल रही होती है या फिर दो नोड्स के बीच में जो दो इंटर नोड्स के बीच में जब नोड होती है, वहाँ पे आपने देखा होगा जैसे बैम्बू प्लांट है, वहाँ पे कुछ अजीब सा डिफ्रेंशिएटेड जो एरिया होता है उस जगह पे होते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये मेरिस्टम बेसिकली करते क्या हैं? ये मेरिस्टम फंक्शन करते हैं आपका जो स्टेम है उसके लेंथ वाइज ग्रोथ में, यानी दो जो हमारे इंटर नोड्स हैं ये ग्रो कर गई, उसके बाद इन बीच वाले एरिया को दोनों साइड ये ग्रो होंगे एंड लेंथ को बढ़ाएंगे जो स्टेम है उसके। लास्ट वी हैव द लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम दो टाइप के सेल से कंस्टिट्यूट होते हैं, वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। आप ये ध्यान रखेंगे कि कॉर्क कैम्बियम इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, जो कैम्बियम है वो हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है। आपको पता होगा जो मोनोकॉर्ड्स हैं उनमें सेकेंडरी डेवलपमेंट नहीं होती है, यानी उनमें कॉर्क कैम्बियम और कैम्बियम एक्सेट्रा नहीं होगा, जिसकी वजह से जो लेटरल मेरिस्टम है उनमें जो है वो या तो नहीं होता है या फिर बहुत कम हद तक होता है। आप यही याद रखेंगे कि जो मोनोकॉर्ड्स हैं उनमें लेटरल मेरिस्टम नहीं होता है। आप याद करेंगे कि ज़्यादातर जो आपके मोनोकॉट प्लांट्स हैं वो काफ़ी थिन होते हैं। इवन बैम्बू जो बाकी सारे प्लांट्स हैं उनसे काफ़ी थिन होता है, मतलब उनकी जो गिर्थ होती है वो काफ़ी कम होती है। वो इसीलिए क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, लेटरल मेरिस्टम उनमें नहीं होता है, जिसकी वजह से गिर्थ वाइज उनमें डेवलपमेंट नहीं होती है। तो इससे हमें ये भी चीज़ पता चलती है कि जो लेटरल मेरिस्टम है वो जो है प्लांट को मोटा करती है, जो इसकी गिर्थ है उसको बढ़ाती है, राइट। हम अगेन वापस चलते हैं इसमें। सो वी हैव फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल्स in both primary as well as the secondary meristem. The newly formed cell becomes structurally and functionally specialized and lose ability to divide. कि हमारे जो मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जो लेटरल मेरिस्टम है उसको सेकेंडरी मेरिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो सारे के सारे जो मेरिस्टम है, सारे के सारे जो टिश्यू है वो सेकेंडरी डेवलपमेंट से फॉर्म होता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो following division of cell, both primary as well as secondary meristem, the newly formed cell becomes structurally and functionally specialized and lose ability to divide. यानी जो सेल्स होते हैं वो जैसे डिवाइड करने के बाद, जो भी किसी भी मेरिस्टम के सेल्स जो है डिवाइड करने के बाद सेकेंड स्टेज में पहुंचते हैं, वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली जो है स्पेशलाइज हो जाते हैं, कुछ फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं, जो फंक्शन वो अपनी पूरी आगे की लाइफ में कवर करने वाले हैं, हमेशा वही फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। Such cells are termed as permanent or mature cell and constitute the permanent tissue. During the formation of primary plant body, specific region of apical meristem produce dermal tissue, ground tissue and vascular tissue. ये क्या कह रहा है कि हमारे जो सेल्स हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिफ्रेंशिएट होने के बाद परमानेंट टिश्यू बन गए हैं, यानी अब उनमें डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं है, वो टिश्यू अब क्या करते हैं, वो टिश्यू हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हैं, ऑर्गन्स हैं, या फिर हमारे जो डिफरेंट टिश्यू हैं वो फॉर्म करते हैं, जैसे कि ग्राउंड टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू एक्सेट्रा। वी सी हियर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने ये टेबल इसीलिए इंक्लूड की है क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये चैप्टर रियली डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो इस चैप्टर को रीड करने का, समझने का दो ही तरीके बचते हैं जिससे आपको ये चैप्टर थोड़ा इजी लगे हो सकता है। तो एक तो ये कि आप हर चीज़ में डिफरेंस करें, क्योंकि
देखिए सबसे पहले तो आपको वैसे भी इस चैप्टर से जो सबसे हार्ड चीज़ें हैं वो यही पूछी जाएंगी, मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए ही आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज में भी डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है, तो अगर आप डिफरेंसेस को याद रखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ऑलराइट, और दूसरा तरीका ये है कि आप अगर हो सके तो डायग्राम्स को अच्छे से, एक एक डायग्राम को अच्छे से याद रखें, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अलॉट। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि गो एंड चेक द क्लास 11th एंड क्लास 12th ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम सीरीज, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। राइट, सो वी हैव हियर प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। इनमें क्या होता है, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सेकेंडरी मेरिस्टम इज फॉर्म लेटर इन द लाइफ। The primary meristem develops from another meristem, right, while the secondary meristem develops from the permanent cells due to de-differentiation। secondary meristem क्या होता है कि जो हमारे, आपको पता होगा जो सेकेंडरी डेवलपमेंट होती है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं वो डी डिफरेंशिएट होते हैं और उसकी वजह से वो मेरिस्टमेटिक बन जाते हैं। अब ये मेरिस्टमेटिक सेल बनने के बाद ये तब जाके डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये वापस से मेरिस्टमेटिक टिश्यू बनते हैं। द सेल्स आर यूजुअली आइसोडेमेट्रिक एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जो सेल्स होते हैं प्राइमरी मेरिस्टम के, दे आर आइसोडेमेट्रिक, यानी कि या तो ओवल और लाइक स्क्वायर और पॉलीगनल टाइप, राइट। और जबकि जो सेकेंडरी मेरिस्टम, द सेल्स आर कॉमनली एलोंगेटेड। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो एलोंगेटेड ही पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसकी वजह से डी डिफरेंशिएशन के बाद भी वो अपनी शेप ज़्यादातर चेंज नहीं करते हैं, दे आर एलोंगेटेड। द सेंट्रल वैक्यूल आर एब्सेंट एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपको याद होगा, दो वेस्कुलर कैम्बियम के बीच में कुछ वेवी सी लाइंस होती हैं, कुछ सेल्स पड़े होते हैं जो कि बाद में आगे चल के कैम्बियम रिंग फॉर्म करते हैं सेकेंडरी डेवलपमेंट के लिए। ये सेल्स जो हैं वो एक्सेप्शन फॉर्म करेंगे। आप देख सकते हैं तीनों ही केसेस में, इनका ये चारों केसेस में एक्सेप्शन है क्योंकि दे आर डिफरेंट, दे आर प्रेजेंट बिटवीन वेस्कुलर कैम्बियम, लेकिन होते हैं ये प्राइमरी मेरिस्टम, राइट। सो इनमें थोड़ा सा जो पोजिशनिंग एंड शेप है वो डिफरेंट होती है। द सेल पोजेसेस सेंट्रल वैक्यूल। क्यों सेंट्रल वैक्यूल? आपको पता है जितने भी जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनको कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है, स्टोरेज या फिर कुछ फॉर्म करने के लिए। इनमें से कोई भी काम करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ स्टोर जरूर करना पड़ेगा अपने एनर्जी के लिए, या फिर जो उनको ट्रांसपोर्ट करना है वो चीज़, तो इसके लिए उनके पास वैक्यूल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, इट यूजुअली गिव्स राइज टू प्राइमरी टिश्यू दैट कंस्टिट्यूट प्राइमरी ग्रोथ। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के अलावा बाकी सारे जो है प्राइमरी मेरिस्टम प्राइमरी टिश्यू फॉर्म करते हैं, जो कि आगे सेल की जो प्लांट की ग्रोथ है, यानी जो लेंथ वाइज या फिर जो साइड वाइज ग्रोथ है उसमें हेल्प करते हैं। वाइल द सेकेंडरी मेरिस्टम गिव्स राइज टू सेकेंडरी और सप्लीमेंट्री टिश्यू दैट कंस्टिट्यूट सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी टिश्यू इधर सप्लीमेंट और रिप्लेस द प्राइमरी टिश्यू। सेकेंडरी टिश्यू इसीलिए तो आखिर जो डिफरेंशिएटेड सेल है वो इसीलिए तो डी डिफरेंशिएट हुए थे, ताकि वो प्राइमरी मेरिस्टम को हेल्प कर सके या फिर उनकी जगह ले सके, राइट। सो प्राइमरी मेरिस्टम यूजुअली प्रोड्यूसेस ग्रोथ इन लेंथ, यानी जो प्राइमरी मेरिस्टम है वो बेसिकली इन्वॉल्व होती है इन ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द प्लांट, जबकि जो सेकेंडरी मेरिस्टम है दैट प्रोड्यूसेस ग्रोथ इन थिकनेस। जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो आपको पता है सेकेंडरी ग्रोथ करेगी, तो इसकी वजह से वो थिकनेस बनाती है। नेक्स्ट वी हैव अगेन डिफरेंट प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल ग्रोथ में डिफरेंस क्या होता है। दिस इज वेरी इजी, लेकिन फिर भी ये ट्रिकी हो सकता है एट सम पॉइंट्स। Plant possess well-defined growth point or meristms, while growing points on meristms are absent in animals, right? उसके बाद growth is apical, intercalary or lateral, while एनिमल्स में ग्रोथ इज डिफ्यूज्ड। आप ये नहीं बता सकते कि आपका हाथ का जो है, ऐसा नहीं तो नहीं हो सकता कि आपके हाथ की टिप लंबी हो रही है, वैसे तो आपकी उंगलियां लंबी हो जाती है और हाथ छोटा ही रह जाता। सो जो ग्रोथ है वो डिफ्यूज होता है आपके लगभग हर बॉडी पार्ट में। अगर आप ग्रो करें, एक बेबी को देखें तो उसका हर बॉडी पार्ट ग्रो कर रहा होता है। हम एक ऐसा नहीं बता सकते कि वो थिकनेस में ग्रो हो रहा है, लेंथ वाइज ग्रोथ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं बता सकते। ऑल्सो इन प्लांट ग्रोथ इज इनडेफिनिट और अनलिमिटेड। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आप मतलब देखने पे ऐसा कह सकते हैं मेच्योरिटी पे रीच होने के बाद कि ये ग्रो नहीं कर रहा है, बट दे आर स्टिल ग्रोइंग। जब तक वो डेड ना हो जाए, सेनेसेंस तक ना पहुंच जाए, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रोइंग। आप वैसे भी ध्यान दे सकते हैं, उनमें नई लीव्स आती हैं, नए फ्रूट्स आते हैं अगर वो पेरेनियल प्लांट्स है, पेरेनियल ट्रीज हैं, और वरना आप देख सकते हैं उनमें हर बार नए फ्लावर्स या फिर नई एटलीस्ट ब्रांचेस और लीव्स तो आती रहती हैं। जबकि ग्रोथ इज डेफिनेट और लिमिटेड इन एनिमल्स।
प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट, इसी का मतलब होता है, वैसे थर्ड और फोर्थ पॉइंट इनने मिक्स कर दिया है। ग्रोथ स्टॉप्स इन एनिमल्स एज सून एज दे मैच्योर लॉन्ग बिफोर द अपीयरेंस ऑफ सेनेसेंस, राइट। प्लांट्स में सेनेसेंस तक ग्रोथ होता है जबकि एनिमल्स में रुक जाता है। नेक्स्ट वी सी न्यू ऑर्गन्स कंटिन्यू टू बी फॉर्म थ्रू आउट द लाइफ, ऑर्गन्स जैसे कि लीव्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस एक्सेट्रा, जबकि ऑल ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो, लेटर ऑन नो न्यू ऑर्गन्स आर एडेड। ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा पैदा होने के बाद उसमें नए ऑर्गन्स आते हैं, एक और हाथ एक और पैर तो आता नहीं है। सो ऑल ऑर्गन्स आर एडेड इन द एम्ब्रियो स्टेज ओनली, ओल्ड ऑर्गन्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू ऑर्गन्स। जबकि जो एनिमल्स है ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक हाथ काट दिया और उसमें वापस से ठाकुर का दूसरा हाथ आ गया, राइट। सो चलो आगे बढ़ते हैं। वी सी हियर द क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू गिवन राइट हियर। Permanent tissue, the cells of the permanent tissue do not generally divide further. This is the basic definition of permanent tissue. Permanent tissue का मतलब यही है, वो टिश्यू that do not generally divide. Generally वर्ड इसलिए यहाँ पे लगाया गया है क्योंकि ये अगर जनरली ना होता तो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता। बाद में यही परमानेंट टिश्यू जो है वो डी डिफ्रेंशिएट होकर डिवाइड करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जनरली वर्ड यूज किया गया है क्योंकि कुछ ही ऐसे सेल्स हैं जो कि डिफरेंशिएट होते हैं, सारे के सारे कभी भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट वी सी परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। यानी एक ऐसा टिश्यू जिसमें वो परमानेंट है, दे कैन नॉट डिवाइड फर्दर, लेकिन जो जितने भी टाइप के सेल्स हैं उनमें वो सारे जो है एक ही टाइप के हैं। आगे हम पढ़ेंगे जैसे कि पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एक्सेट्रा, वो सारे के सारे एक ही टाइप के सेल है। सो दैट टिश्यू इज सिंपल टिश्यू। नेक्स्ट वी सी परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यानी एक टिश्यू है जिसमें जो कि डिफरेंट तो वो डिवाइड तो नहीं कर सकती, लेकिन उनमें जितने टाइप के सेल्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट टाइप के हैं। अगर सारे डिफरेंट टाइप के भी नहीं है तो उसमें एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के सेल्स जरूर होंगे। नेक्स्ट वी हैव द परमानेंट टिश्यू। इसमें जो है हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या कहते हैं। अब इनमें जो है फर्स्ट हमारा पार्ट आता है सिंपल टिश्यू, जिसको हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। सो द सिंपल टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। द सिंपल टिश्यू इज मेड अप A simple tissue is made up of only one type of cell. The various simple tissue in plants are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. यही तीन टाइप के वो टिश्यू हैं जो सिंपल टिश्यू कहलाते हैं, यानी कि दे डू नॉट डिवाइड, लेकिन एक ही टाइप के सेल जो हैं वो पूरे के पूरे टिश्यू में पाए जाते हैं। पेरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट ऑफ विद इन ऑर्गन। ये आप ध्यान रखेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो पेरेन्काइमा है दैट इज द मेजर टिश्यू। जितने भी आपका ग्राउंड टिश्यू ले लीजिए या फिर आपका जो वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड जितने सेल्स होते हैं, आपके एंडोडर्मिस के नीचे या फिर पिथ एक्सेट्रा, जितने भी आपके सेल्स हैं वो सारे के सारे पेरेन्काइमा ही होते हैं। The cells of the parenchyma are generally isodiametric. Isodiametric यानी कि उनकी जो शेप है वो रिकॉग्नाइजेबल होगी, अमीबॉइड शेप नहीं होगी। लाइक दे ऑल आर सर्कुलर, दे ऑल आर स्क्वायर और पेंटागोनल और समथिंग लाइक दैट, राइट। उसके बाद दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और एलोंगेटेड इन शेप। जैसे कि मैंने आपको बताया एक स्पेसिफिक शेप होगी। देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। एक और बात मैं आपको बता दूं, शायद बताना भूल गया हूँ। पेरेन्काइमा का मतलब है पेरेंट जो वर्ड है इसका मतलब है यहाँ पे पेरेंट, यानी ये जो पेरेन्काइमा है ये पेरेंट सेल यानी मेरिस्टेमेटिक सेल जैसा ही होता है। यानी अगर आप इसको डायरेक्टली देखें अंडर द माइक्रोस्कोप तो आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। थिन वॉल्स, जैसे कैरेक्टर जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का वो मैं आपको बता रहा हूँ। दे हैव थिन वॉल, जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड अच्छे से फुल्ली पैक्ड जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो होते हैं। सो जो पेरेन्काइमा सेल है दे लुक एग्जैक्टली लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड डिफरेंस बस यही होता है कि द पेरेन्काइमा डू नॉट डिवाइड व्हाइल द मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड। They may be either be close packed or have small intercellular spaces between them. The parenchyma performs various functions like photosynthesis, storage and secretion. इसके लिए पेरेन्काइमा को डिफरेंट नाम भी दिए जाते हैं, जो कि मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जब वीडियो करूंगा उसमें करूंगा, बट इसमें भी आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वो लाल वाले बटन को दबाओ यार, वो नीला बटन भी आना चाहिए, वो नीला बटन नजर आना चाहिए ऑलवेज। इन दोनों बटन को दबाओ, साथ में बेल आइकन को भी दबाओ ताकि कोई भी नई वीडियो, ये एक चैनल ऐसा है जिसमें आपको डेली एटलीस्ट 1 वीडियो तो जरूर मिलेगी
फुल एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो बेल आइकन भी दबा लो ताकि आपको नई वीडियो कोई भी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आए। पहले मैं आपको पेरेंट काइमा का डायग्राम दिखा देता हूँ, दैट विल बी रियली वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट काइमा का एक बहुत ही अच्छा ऑल टाइप्स ऑफ पेरेंट काइमा जो है आपके उसका डायग्राम दिया हुआ है। द टाइप्स ऑफ पेरेंकाइमा सेल्स ए टू बी नॉर्मल पेरेंकाइमा सेल्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये राउंडेड एंगुलर। सी जो है आपका देख सकते हैं प्रोजेन काइमा लिखा हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज प्रोजेन काइमा? प्रोजेन काइमा का मतलब है ये जो है एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। डी जो है हमारा है जाइलम पेरेंकाइमा। आपको पता है जाइलम का एक एलिमेंट जो है वो पेरेंकाइमा होता है। मैंने इसलिए कहा था कि जो पेरेंकाइमा हो दैट इज रियली मेजर जो हमारा टिश्यू है वो है, और ये बहुत ही ज़्यादा जगह पे यूज़ होता है। नेक्स्ट वी हैव ई है हमारा एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल जो है वो भी पेरेंकाइमा के फॉर्म हुए होते हैं, जो कि कुछ सिक्रीशंस भी करते हैं। यू कैन सी इनने क्यूटिकल की सिक्रीशन की है जिसकी वजह से प्लांट को सेफ रखा जा सके। यू हैव मीजोफिल। जो मीजोफिल है स्पॉन्जी या फिर पैलिसेड, दो टाइप के मीजोफिल सेल होते हैं, आपको पता होगा अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ रखी है तो ये जो है वो सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। मीजोफिल सेल जो कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में यानी मोस्ट ऑफ द डायकॉट्स प्लांट्स में बेसिकली फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड लास्ट वी हैव एयर एंड काइमा। यू कैन सी जो सेल्स हैं उनने आपस में जो ऐसी फॉर्मेशन की है जिसकी वजह से बीच में कुछ एयर कैविटीज बन गई हैं। यू कैन सी जहाँ पे ये एयर को ट्रैप करते हैं। ये जो फॉर्मेशन है ये बेसिकली देखी जाती है हमारे जो वाटर प्लांट्स हैं उनमें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर प्लांट्स में कुछ एयर उनमें अगर उनके अंदर स्टोर्ड रहेगी तो उनमें बायंसी रहेंगी एंड वाटर के ऊपर वो फ्लोट कर सकते हैं। अगर उनके अंदर एयर नहीं होगी तो वो डूब जाएंगे, पानी के अंदर सिंक कर जाएंगे एंड धीरे धीरे वो मर जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव द कोलेनकाइमा। द कोलेनकाइमा occurs in layers below the epidermis in most of the dicotyledonous plant. It is found either as a homogeneous layer or in patches. यानी कि जो कोलेनकाइमा है ये जो हमारी एपिडर्मिस है उसमें बहुत उसके नीचे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और बेसिकली आप कोलेनकाइमा को सिर्फ वहीं देख भी पाएंगे। कोलेनकाइमा का मेजर फंक्शन ये होता है कि वो स्ट्रेंथ देता है। यानी आपको पता है एपिडर्मिस का बहुत वियर एंड टियर होता है, तो उसकी वजह से प्लांट को कोई नुकसान ना हो इसलिए जो हमारा एपिडर्मिस है उसके जस्ट नीचे कोलेनकाइमा होता है। क्योंकि कोलेनकाइमा को आपको पता होगा सेमी मैकेनिकल सेल्स बोलते हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, राइट। Next we have it consists of cell which are thickened at the corner due to deposition of cellulose. इसे वही मैं कह रहा था कि जो कोलेनकाइमा के सेल्स होते हैं उनके कॉर्नर्स पे या फिर डिफरेंट एक्चुअली वो शेप्स में आपको दिखाऊंगा। अलग अलग शेप्स में जो कोलेनकाइमा है उनमें सेलुलोज की डिपोजिशन होती है जिसकी वजह से जो सेल्स होते हैं वो हाफ डेड होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये आप याद रखेंगे। हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, आपको पता होगा पेक्टिन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। इनके डिपोजिशन की वजह से सेल्स जो है कोलेनकाइमा के बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। कोलेनकाइमा cells may be oval, spherical or polygonal and often contain chloroplast. ये भी आप बात ध्यान रखेंगे कि कोलेनकाइमा जो है उसकी भी अलग अलग शेप हो सकती है। दे कैन बी क्लोजली पैक्ड एक्सेट्रा, बट इनमें भी क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। ये मैंने कहा कि कोलेनकाइमा इज हाफ डेड बट पूरा डेड नहीं होता है। दे आर ऑल्सो लिविंग, दे रेस्पायर और साथ में वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये मैंने इसीलिए अलग से हाईलाइट कर रखा है, आप ध्यान दे रहे होंगे मैंने कई चीज़ें हाईलाइट कर रखी है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप भी इन सारी चीज़ों को साथ में एनसीईआरटी लेके बैठे हैं। एनसीईआरटी में सारी चीज़ें ये अपने हाईलाइट करते जाएं। These cells assimilate food when they contain chloroplast. Intercellular spaces are absent. जो कोलेनकाइमा है वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं क्योंकि ये सेमी मैकेनिकल सेल्स होते हैं, तो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए उन्हें आपस में बहुत ही टाइटली पैक्ड होना पड़ेगा। They provide mechanical support to the growing parts of the plant such as young stem and petiole of leaf, as I told you first. अब मैं आपको इसका भी डायग्राम दिखा देता हूँ। वो डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यू कैन सी हियर टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपोजिशन। मैं आपको दिखाऊं तो जो फर्स्ट है हमारा लेमिनेट और प्लेट लाइक। लेमिना आपको पता होगा प्लेट होती है, लेयर होती है, यानी एक लेयर में इनकी डिपोजिशन होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स हैं आपस में लाइन में लगे हुए और साथ में उनके ऊपर पूरी की पूरी लेयर में यहाँ पे लगा हुआ है, देन यहाँ पे लगा हुआ है, पूरी की पूरी चारों तरफ इनकी एक प्लेट बना दी गई है डिपोजिशन से। सेकेंड है हमारा एंगुलर। ये क्या होता है? ये हमारा सेल है, यहाँ पे डिपोजिशन हुई स्ट्रेट, यहाँ पे डिपोजिशन हुई, यहाँ डिपोजिशन हुई, यहाँ डिपोजिशन हुई, यहाँ हुई।
सो दे फॉर्म सम एंगुलर डिपोजिशंस, यू कैन सी कुछ एंगल्स बन रहे हैं, इन एक स्ट्रेट एंगुलर डिपोजिशंस फॉर्म करते हैं। एंड लास्ट वी हैव लैकुनेट। लैकुनेट क्या होते हैं कि ये लैकुना फॉर्म कर देते हैं। ये देखिए आप, जैसे ये एक सेल है एंड डिपोजिशन कुछ ऐसी होगी सर्कुलर, कुछ लैकुनर, और बीच में जो है कुछ लैकुना यानी कि कुछ स्पेस रह जाता है, उसी को यहाँ पे एनलार्ज में दिखाया गया है कि बीच में लेकुनेट थिकनिंग है एंड बीच में एयर स्पेसेस रह गए हैं। एज यू कैन सी हियर, वो एरो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे एयर स्पेसेस रह गए हैं, सो दीज आर कॉल्ड लेकुनेट। लास्ट वी हैव sclerenchyma. Sclerenchyma consists of long, narrow cells with thick and lignified cell wall having a few or numerous pits. ये बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। साइड में स्क्लेरेंकाइमा का इस साइड जो है वो कुछ डायग्राम दिया हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे उसे ही सिर्फ स्क्लेरेंकाइमा समझ लेते हैं। बट टुडे मैं आपको जो है सारे के सारे स्क्लेरेंकाइमा डिफरेंट टाइप्स के उनके डायग्राम दिखाने वाला हूँ। दे आर रियली इंपॉर्टेंट। एंड स्क्लेरेंकाइमा सिर्फ 2 टाइप्स के नहीं होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा 5 to 6 टाइप्स के होते हैं, जो कि मैं सारे दिखाने वाला हूँ। दे आर यूजुअली डेड और विदाउट प्रोटोप्लास्ट। ये आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखेंगे कि स्क्लेरेंकाइमा आर बेसिकली मैकेनिकल सेल, और उनका बस एक ही और सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, दैट दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड दे आर विदाउट प्रोटोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि अगर कोई सेल डेड है तो दे कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा, तो उसको प्रोटोप्लास्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। On the basis of variation in form, structure, origin and development, sclerenchyma may be either fiber or sclerate. जो 2 मेजर टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा हैं वो है फाइबर एंड स्क्लेरेट, बट स्क्लेरेंकाइमा मैंने आपको बताया 5 to 6 टाइप्स के होते हैं, राइट। फाइबर्स उसे कहते हैं, द फाइबर्स आर थिक वॉल्ड elongated and pointed cells, वैसे भी आपको फाइबर के नाम से पता चल रहा होगा, generally occurring in groups in various parts of the plant. Next, we have the sclerids are spherical, oval, or cylindrical, highly thickened dead cells with very narrow cavity or lumen. These are commonly found in the fruit walls of nuts, pulp of fruit like guava, pear, sapota seed, coat of legumes, and leaves of tea. Sclerenchyma provides mechanical support to organs. ये मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स, मैं बता रहा हूँ, मैंने जो चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं मैं उसको बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ, आप भी अपनी बुक में इसे हाईलाइट कर ले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, रियली इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो मैं अगेन कह रहा हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ अ न्यू चैनल, इट नीड्स योर सपोर्ट। Please support the channel to get much more better quality of videos and also to support me. मैं sclerenchyma के आपको diagrams दिखा दूँ। This is the sclerenchyma, different types of sclerenchyma. Sclerenchyma fibers का यहाँ पे mainly मैं diagram दिखा रहा हूँ, longitudinal sectional view and transverse sectional view। जैसा कि उसमें कहा गया था, एक longitudinal cells होते हैं with pointed ends, साथ में ये जो है अंदर से खोखले होते हैं, अंदर इनके कुछ भी नहीं होता है, सेल्स जो है वो डेड होते हैं, इसकी वजह से अंदर कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव, ये जो है आपका डायग्राम दिया गया है स्क्लेरेंकाइमा का, सी पार्ट जो है आपको डायग्राम दिया गया है यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा का, विच इज़ नॉट द स्क्लेरेंकाइमा। एक्चुअली ये सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ हैं, एक फाइबर एंड दूसरा स्क्लेरेट। बट ऑल टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा की बात करें तो दिस इज द मेजर 5 टाइप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। वी हैव स्टोन सेल, जिसे वहाँ पे स्क्लेरेट बताया गया है। बेसिकली यही स्क्लेरेट होता है, बट हम सिर्फ स्क्लेरेट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। एंड माइंड इट, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दी गई है वो नहीं आएगी। दे कैन सी कि अगर स्क्लेरेंकाइमा का नाम दिया गया था सो यू शुड हैव स्टडीड एन एक्स्ट्रा वर्ड अबाउट स्क्लेरेंकाइमा। तो स्क्लेरेंकाइमा के बारे में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बल्कि किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की वीडियो भी करूँगा, और साथ में मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एनसीईआरटी से अलग भी मिलेगी। सो एनसीईआरटी पे टिक के मत बैठ जाओ, आपको ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से सबको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, राइट। सो वी हैव फर्स्ट द स्टोन सेल्स। ये आप एग्जाम्पल्स लिखते जाएं क्योंकि आपको शायद बाद में फिर याद ना रहे, और मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आपको हो सकता है समझ भी ना आए। उसके बाद आपका नेक्स्ट है हमारा मैक्रोस्क्लेरेट। मैक्रोस्क्लेरेट क्या होते हैं? बड़े बड़े सेल्स होते हैं, बड़े बड़े डेड सेल्स होते हैं जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्योंकि ये बड़े होते हैं तो आपको पता है कि जैसे बड़ी लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, वैसे ये बड़े सेल्स होते हैं जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, बट दे कैन बी ब्रोकन, और ये उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो लेग्यूम्स फॉर्म होते हैं, जो पॉड होता है, पॉड जो है वो बाहर से काफ़ी टाइट होता है, वो टाइटनेस जो है वो मैक्रोस्क्लेरेट की वजह से ही आती है।
right? नेक्स्ट वी हैव द ओस्टियोस्क्लेड। ओस्टियोस्क्लेड आपको मैं बता दूं, ओस्टियोस्क्लेड आपको पता होगा, जो ओस्टियो का मतलब हड्डी होता है, तो ओस्टियोस्क्लेड इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि इसकी शेप हड्डी की तरह है, राइट? कोकोनट है उसमें ओस्टियोस्क्लेड होता है। और जो आपका स्टोन सेल है वो आपका, आपने देखा होगा जो गुआवा है उसकी सीड एरिया में कुछ टाइट सेल्स होते हैं जो कि मतलब स्टोन जैसे लगते हैं, वेरी स्मॉल स्टोन जैसे लगते हैं, सैंड हो एक्सेट्रा। तो ऐसे गुआवा के बीच में होता है, वो होते हैं स्टोन सेल्स। एंड जो कोकोनट का शेल होता है दैट इज मेड अप ऑफ ओस्टियो, यानी कि जो हड्डी वाले सेल होते हैं उनका, दे आर वेरी टाइट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लास्ट वी हैव एस्ट्रोस्क्लेड। एस्ट्रो का मतलब आपको पता होगा एस्ट्रोलॉजी, स्टार्स, यानी एस्ट्रो यानी स्टार्स होता है। सो ये इसका नाम भी एस्ट्रोस्क्लेड इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी शेप एस्ट्रो यानी स्टार्स जैसी है। सो इट इज एस्ट्रोस्क्लेड। एस्ट्रोस्क्लेड आपको मिलेगा इन द जेरोफाइट्स। जेरोफाइट यानी जो आपकी जो प्लांट जेरिक कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में, जो आपके रेगिस्तान में पाए जाते हैं, उन प्लांट्स में जो है वो एस्ट्रोस्क्लेड मिलेगा। एंड फाइनली वी हैव फिलीफॉर्म स्क्लेड। फिलीफॉर्म स्क्लेड होते हैं नीडल शेप जो स्क्लेड्स होते हैं। ये स्लेड्स आपको मिलेंगे कहाँ पे मिल सकते हैं आपको? ये वाटर प्लांट्स में। जो वाटर प्लांट्स होते हैं जो सबमर्ज्ड होते हैं पानी में, इनको स्लेड्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये वाटर की वजह से धीरे धीरे खराब ना हो जाए, इसलिए। सो हमने आज सिंपल टिश्यू कवर कर लिया है, हम कल कॉम्प्लेक्स टिश्यू कवर करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड द चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को, ये एक नया चैनल है, इस नीड्स योर सपोर्ट मैं बार बार कह रहा हूँ। सो वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टिल देन, थैंक यू वेरी मच।